Good morning, dear student. Today we are going to discuss applications of Biot-Savart's law. In previous lecture, we have already discussed the Biot-Savart's law, but for a revision, we can go the previous slide related to the Biot-Savart's law. In Biot-Savart's law, we have a wire carrying a current I. We took a very small element, current element, that is a length of dl, and at observation point P, which is at distance r from the small element, the magnetic field due to this current element depending on all these four factors: I, dl, I means current, dl means length of the segment, directly proportional to sin theta. Sin theta means theta is the angle between the position vector of the observation point and the current element, right? And it is also obeying the inverse square law. So dB is inversely proportional to r square. After combining all these factors, we get dB is equal to directly proportional to I dl sin theta by r square. After removing the proportionality sign, we have this proportionality constant mu naught by 4 pi. Mu naught is the permeability, right? And after this Biot-Savart's law, we have taken the vector form of the Biot-Savart's law. After removing this r unit vector, we got r vector divided by magnitude of r. So formula becomes dB is equal to mu naught by 4 pi IDL cross r divided by r cube. This is the vector form, right? Although it obey the inverse square law. And for the entire element of current, we can get the magnetic field by integrating these factors, right? Now we are taking applications of Biot-Savart's law. Now the first application is magnetic field due to straight wire carrying current, and moreover this wire is infinite wire, right? So we have this wire carrying current I in upward direction. This current is I, right? Now we want to find the magnetic field at point P. One thing is clear, that the magnetic field at point P is inward as per the right hand thumb rule, right? So magnetic field here, it should be inward direction. Now we are taking a small element dl, right? Now we should get the distance, that distance is r, and moreover its position vector is r vector from this element. As per the Biot-Savart's law, we can get the magnetic field due to this small current element. Now what will happen, we will draw the perpendicular to the wire, and the length of this perpendicular is a, right? Now we have an angle here, that angle is theta as per the Biot-Savart's law, right? This is a 90-degree angle. Now this is L. We are assuming this distance is L, right? From this point to this point. So this is L, this is A, this is R, right? Now this angle is theta, we have already discussed it. Let this angle is phi, right? This angle is phi. Now this angle is 90 degree, right? It means phi is equal to 90 minus theta, right? Since the sum of theta and phi is 90 degree. Now we are joining the extreme points of this infinite wire from the observation point. इस P पॉइंट को आपने बिल्कुल बॉटम वाले एंड से डॉटेड लाइन से मिला दिया, और ये वाला जो एंगल है वो इस परपेंडिकुलर से दिस एंगल इज फाई 1. ये वाला एंगल, दिस एंगल इज फाई 1, राइट? नाउ वी आर ज्वाइनिंग observation point from the topmost part, and this angle is phi 2 with the this perpendicular, right? Now we this is the direction of magnetic field. This is cross, means inward,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अगर आउटवर्ड होगा तो क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे सर्किल के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्ड। ठीक है ना, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके पता कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक, अब हम यूज कर रहे हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल, dB मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल पे चल रहे हैं जिसमें थीटा और फाई एंगल है। इस ट्राइंगल में साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, आर। तो दिस इज ए बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू कॉस फाई। अब अगर मैं इसी ट्राइंगल से कॉस फाई को देखूं तो ए क्या बन गया, उसका बेस, और आर क्या हो गया, हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसको हम कॉस फाई भी लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा और कॉस फाई एक ही चीज़ है। वैसे भी आप जानते हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा को कॉस फाई लिखा जा सकता है। दैट्स क्लियर। अब अगली चीज़ देखेंगे हम, यहाँ पे हम r इक्वल टू लिख सकते हैं a बाई कॉस फाई। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, कारण ये है कि हमें यहाँ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है ना, और लिमिट्स हम लेंगे फाई की, क्योंकि हमें यहाँ से लेके बॉटम से लेके अप तक जाना है। तो हम किसकी टर्म्स में जाएंगे, फाई की, क्योंकि हमारे पास लिमिट एक होगी फाई 1 और दूसरी होगी फाई 2, इसलिए हम इसको फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, थीटा में नहीं। ठीक है, हम इस थीटा को भी यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। ठीक, तो होगा क्या, अगर मैं tan फाई लूँ इसी ट्राइंगल से, तो tan फाई शुड बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, l बाई ए। तो tan फाई इज इक्वल टू l बाई ए, दैट्स वाई l इज इक्वल टू a tan फाई। a को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमें l तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, डेल्टा l या dl। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो l को डिफरेंशिएट किया तो dl, tan फाई को डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर फाई। ठीक है, तो दिस इज dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। अब हमारे पास dl भी आ गया और r भी आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखने वाले हैं उसमें। तो हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, क्या करा आपने, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, दूसरा काम क्या करा आपने, dl की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है फाई 1, लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम यहाँ से लेंगे, तो इट शुड बी माइनस फाई 1। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, एंगल जो आपने लिया है वो बेस से लिया है, तो इसे हम लेंगे माइनस फाई 1, और फाई 2 हो गई अपर लिमिट यानी टॉप पार्ट पे। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। अब अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो फाई 1 कितना होगा, पाई बाई 2, और फाई 2 भी कितना होगा, पाई बाई 2। उसका कारण ये है कि ये जो बॉटम पार्ट है वो है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे अगर आपको इस पॉइंट से ज्वाइन करना हो तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। सेम चीज़ ये वाला पॉइंट भी इन्फिनिटी पे, तो आपको यहाँ से पैरेलल लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके तो मिलेगा वो इन्फिनिटी पे। तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2l डिवाइडेड बाई 4 पाई। क्लियर, यानी जो साइन फाई 1 था, साइन फाई 2 था, वहाँ हमने पाई बाई 2 रख दिया, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही साइन फाई 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है ना, तो 1 प्लस 1 करके फिर हम सॉल्व करके इतना ले आते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, दीज आर द वेरिएशन। जब आप माइनस और प्लस में जाते हैं तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आएगी, ठीक है ना, हाथों के फिंगर्स की कर्ल की डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो थंब रूल में थंब को आपको नीचे करना पड़ेगा, राइट हैंड का थंब, तो कर्ल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब सेकंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर। अब ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आउटवर्ड है और यहाँ क्या है, इनवर्ड, ठीक। अब ये है सर्कुलर लूप, ठीक है। कॉइल और लूप में एक अंतर है, लूप में सिर्फ एक टर्न होती है और कॉइल में बहुत सारी टर्न्स होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा एलिमेंट, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है ना, हमें सेंटर पे निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आर, आर का मतलब रेडियस। इस करंट एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल जो हम थीटा लेते हैं वो कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म की जगह हम नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो हमने यहाँ सीधा थीटा की जगह क्या रख दिया, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मतलब हो गया 1। इसका मतलब डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं पूरी लूप के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और आर स्क्वायर ये तो हो गए कॉन्स्टेंट्स, तो हम डी एल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डी एल का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। यानी इस इंटीग्रेशन डी एल की जगह आ गया 2 पाई आर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, ठीक। लेकिन ये किसके लिए निकली है, लूप के लिए, यानी एक ही टर्न है इसमें, ये लूप है। अब हमें क्या करना है, पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए लेना है। कॉइल में n टर्न्स हैं, 4 टर्न्स 5 टर्न्स कितने भी हो सकते हैं, तो हर एक का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसे n से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, सॉरी ड्यू टू कॉइल। तो जितना लूप का आता है उसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 एप्लीकेशंस हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, ये है इनफाइनाइट वायर के लिए। दूसरा है सर्कुलर लूप के लिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाई आर। अगर लूप हुई तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। ये है बायो-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।